Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, as you know, we are reading the lesson 3 questions. Today it is our last paragraph. So let us start. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him. And he promised to give back the man his property. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my questions, wise man." "You have already been answered," said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. "How have I been answered? What do you mean? Do you not see?" replied the hermit. "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you, and you would have wished you had stayed with me. So that most important time was when you were digging the beds, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you. So he was the most important man, and what you did for him was your most important business. Remember then, there is only one time that is important, and that time is now. It is the most important time because it is the only time you have any power to act. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. The most important business is to do that person good because we were sent into this world for that person alone. तो बच्चों, द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली. बादशाह खुश हुआ, उसने अपने दुश्मन से दोस्ती कर ली और वो भी बड़ी आसानी से. एंड टू हैव वॉन हिम और एज अ फ्रेंड, और उसका दिल जीत लिया. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने सिर्फ इसको माफ़ी नहीं किया, बट said he would send his servants and his own doctor, बल्कि उससे कहा कि मैं आपको अपने नौकर भेजूंगा और अपना डॉक्टर भेज दूंगा, टू लुक आफ्टर हिम, आपको देखभाल करने के लिए. एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने वादा किया उस आदमी से कि मैं आपको आपकी सारी जायदाद वापस करा दूंगा. लीविंग द वाउंडेड मैन, इस जख्मी आदमी को छोड़कर, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, बादशाह झोंपड़ी से बाहर आया. एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट, और इधर उधर देखने लगा दरवेश को. बिफोर गोइंग अवे ही विशड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस. जाने से पहले वो एक बार फिर अपने सवालों का जो है जवाब ढूंढना चाहता था, मालूम करना चाहता था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, बादशाह दरवेश के पास गया एंड सैड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. ए अक्लमंद आदमी, आखिरी बार मैं आपसे अपने सवालों के जवाब पूछना चाहता हूँ. यू ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सैड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा, आपको तो जवाब मिल गया है. स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग
as he stood before him, still bending on the ground. दरवेश अपने घुटनों के बल ज़मीन की तरफ झुका हुआ था, तो इसी हालत में उसने बादशाह को कहा कि भाई आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया। दरवेश उस वक़्त बीज बो रहा था उन चमनों को जो कल खोदे गए थे। हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? बादशाह कहने लगा कि किस तरह से मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए, आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने जवाब दिया कि आपने नहीं देखा? इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे, कल अगर आपको मेरी कमज़ोरी पर रहम नहीं आया होता, एंड हैड नॉट डग 3 बेड्स फॉर मी, और आपने 3 चमन मेरे लिए नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप गया होता, यानी आप वापस गया होता। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और उस आदमी ने आप पे हमला किया होता जो अंदर पड़ा है। एंड यू वुड हैव विशड, और आप उस वक्त चाहत करता कि यू हैड स्टेड विद मी, कि मैं काश दरवेश के पास ही बैठा होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वायर डिगिंग द बेड्स, तो इसलिए सबसे ज़रूरी वक्त वो था जब आप वो चमन खोद रहा था। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे ख़ास आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मुझे अच्छा करना, मेरी खिदमत करना, मुझ पे रहम करना आपका सबसे ज़रूरी काम था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, उसके बाद जो आदमी हमारी तरफ दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू आर केयरिंग फॉर हिम, और सबसे ख़ास वक्त वही वक्त था जब आपने उसका इलाज किया। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, क्योंकि अगर आपने उसके ज़ख्म की मरहम पट्टी नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, आपसे दोस्ती करने के बगैर, आपसे माफ़ी मांगने के बगैर। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, तो इसलिए वो सबसे ख़ास आदमी था उस वक़्त। एंड वट डू यू डिड फॉर हिम वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया उस वक़्त वो आपका सबसे ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन, इसलिए आपको याद रखना चाहिए, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड दैट टाइम इज़ नाउ। यहाँ सिर्फ ख़ास वक्त, इम्पॉर्टेंट टाइम, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक वक्त जो सबसे ज़रूरी है, दैट इज़ नाउ, उसको वो प्रेजेंट टाइम है, इस वक्त बिल्कुल जिसमें हम कोई काम करते हैं, कोई बात करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन यू हैव एनी पावर टू एक्ट। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट टाइम है, ज़रूरी वक्त है, क्योंकि इसी में आपके पास कोई ताकत है, कोई काम करने का, कोई हरकत करने, कोई एक्शन करने की। ना आप आगे कर सकते हो, ना पीछे कर सकते हो। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और आपके लिए या किसी के लिए भी वही इंसान सबसे ख़ास इंसान है जो आपके साथ एक ख़ास मोमेंट, ख़ास लम्हे के वक्त, ख़ास लम्हे के लिए होता है, वही सबसे ख़ास आदमी होता है। फॉर नो वन नोज, तो इसलिए कि कोई नहीं जानता है, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, कि हम किसी और से मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू द पर्सन गुड, इसलिए सबसे ख़ास काम यही है कि आप उस इंसान से अच्छा करो जो आपके साथ है। बिकॉज वी आर सेंट इन दिस वर्ल्ड फॉर दिस दैट पर्पज़ अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसीलिए उसी लम्हे के लिए भेजा है कि जिस लम्हे में आपके पास कोई ताकत है किसी पे रहम करने का, किसी पे जुल्म करने का, किसी को अच्छा करने का, किसी को बुरा करने का, तो वो लम्हा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त है, और वही इंसान सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, उसी को हमें सुनना चाहिए, उसी को हमें ट्रीट करना चाहिए जो उस लम्हे में हमारे साथ होगा। तो इस तरह से बादशाह को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल गए बच्चों, लिहाजा ये लेसन कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह कल हम दूसरा लेसन शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।